believe God has a plan for each one of our lives. और हम में से हर एक के जीवन के लिए प्रभु की योजना है। And always be hopeful for great things to happen in your life. और हर समय हम आशा रखें कि प्रभु हमारे जीवन में एक महान कार्य करेगा। Sometimes we always anticipate bad things to happen in life. और कई बार हम लोग यही सोचते हैं कि कुछ बुरा मेरे साथ में होगा। There are some people kind of don't know what is waiting for us. और कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। But people of God, children of God, we must be the people of hope than any other people in this world, isn't it? लेकिन हम प्रभु के बच्चे होने के नाते हमको ये आशा हर वक्त रखनी है कि प्रभु इससे बढ़कर हमको करने वाला है। But some time back there was a research done. और कुछ समय पहले एक रिसर्च किया गया था। They brought about two categories of people, two groups of people. और दो भाग के लोगों को वहाँ पे लेके आया। One group of people who always think negatively. और एक भाग के जो लोग थे वो हर समय नकारात्मक चीजें सोचते थे। They don't expect anything good to happen in their lives. और वो ये सोचते थे कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। There is another group of people who are optimistic in life, who look forward for good things in their life. और दूसरे प्रकार के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि कुछ अच्छा उनके जीवन में होगा। So they send these people to a shopping mall to do shopping. और एक शॉपिंग मॉल में दोनों भाग के लोगों को भेजा गया कि जाके वो लोग कुछ खरीदी करें। And just on their way they had placed an $100 bill there. और एक $100 का एक नोट वहाँ पे रखा गया। All those people who negatively think, they never noticed it. और जो हर समय नकारात्मक जो सोचते थे उनका ध्यान उस नोट के ऊपर नहीं गया। People who think optimistically, they were the ones first to see that. लेकिन जो सकारात्मक सोच रखते थे उनका ध्यान के उस नोट पे पहले गया। The research proves that people who always see negative things in their life will not even notice the positive things that are happening around us. और उस संशोधन का ये अर्थ था कि जितने भी लोग नकारात्मक सोचते हैं, अपने बारे में गलत सोचते हैं, वो कभी भी जो चीज अच्छी उनके आजू बाजू में हो रही है उसको वो देख भी नहीं पाएंगे। We being the children of God, और जब हम प्रभु के बच्चे हैं, we being people who have the living word of God, और हम जो बच्चे हैं जिनके पास में प्रभु का वचन है, we having the living spirit of God dwelling in us, और पवित्र आत्मा जो प्रभु की है वो हमारे मध्य में जो वास करती है, we who has got the presence of God in our lives, और हम में जो प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन में है, we should always be positioned to expect good things to happen in our lives. और हमको हमारा स्तर इस प्रकार से रखना है कि हमारे जीवन में हर चीज बेहतर ही होगी। Hallelujah! 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 Turn to your neighbor and say something good is about to happen in your life. अपने पड़ोसी की ओर देख के गए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा कार्य होने वाला है। Turn to the other neighbor and say something great is going to happen in your life. और दूसरे पड़ोसी को देख के कहे कि आपके जीवन में महान कार्य होने वाला है। Hallelujah! Hallelujah! How many of you believe that? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? We must and keep praying, keep praising, keep anticipating. और हमें हर समय प्रार्थना करनी है, हर समय स्तुति करनी है, हर समय हमें को अपेक्षा रखनी है। This evening the word that I want to share is about how to build an atmosphere of praise around our lives. और इस शाम को जो मैं वचन बांटने वाला हूँ कि हम हमारे आजू बाजू में एक आराधना का माहौल कैसे बनाएं। A couple of weeks I began this word about how important the spiritual atmosphere that we build around us. और कुछ सप्ताह पहले मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक आत्मिक वातावरण को हमारे चारों ओर बनाना जरूरी है। I told you about the different layers of atmosphere that are above the earth. और वातावरण के हर प्रकार के स्तर के बारे में मैंने आपको बताया था। Remember I spoke about 5 layers. मैंने 5 स्तर के बारे में आपको बताया था। You remember? क्या आपको याद है? Troposphere, ट्रोपोस्फियर, stratosphere, स्ट्रेटोस्फियर, mesosphere, मेसोस्फियर, thermosphere, थर्मोस्फियर, exosphere. एक्सोस्फियर। Either we understand them or not. अगर हम उसको समझते हैं या नहीं, Either we know it that is there or not. अगर हमको पता है कि वो है भी या नहीं, But let me tell you, because of all those layers, we are alive. लेकिन ये जितने भी स्तर है उसके वजह से हम लोग जिंदा है। Because of those layers of atmosphere, the life in this earth is happening. और ये वातावरण में जो ये अलग अलग 5 स्तर जो बने हैं उसी वजह से इस धरती के ऊपर में जीवन है। Just like there are layers of natural atmosphere, we need to build layers of spiritual atmosphere for us to be spiritually alive and active. और जैसे वातावरण में ये स्वाभाविक अलग अलग स्तर है जिस वजह से जीवन हमको मिलता है, उसी प्रकार से
हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी उस प्रकार से वातावरण को बनाना जरूरी है। I thought that I will share about various layers of spiritual atmosphere that we should build during the prayer time, the 7 days of fasting prayers that we had. और मैंने विचार किया था कि जो 7 दिन की हमारी उपवास प्रार्थना थी उसमें हर दिन एक एक स्तर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आत्मिक वातावरण को बनाना है। But each day we had a different experience and the Spirit of God led us in different directions. और लेकिन हर दिन नया नया अनुभव हुआ और प्रभु की आत्मा हमको अलग अलग तरह से अगुवाई कर रहा I was था only able to cover one. और केवल मैं एक ही स्तर को उसमें से बात कर I सका। spoke about how do we create an atmosphere of prayer around our lives. और मैं केवल ये बताया कि किस प्रकार से प्रार्थना का वातावरण हमारे जीवन में रहना जरूरी है। I shared about we are called to pray at all times. और मैंने कहा कि प्रार्थना हमें हर समय प्रार्थना करनी है Pray in all circumstances. और हर परिस्थिति में प्रार्थना करनी है Pray with all saints. और जितने भी संत लोग हैं उन सब के साथ Pray with प्रार्थना all करनी है kinds of prayers. और हर प्रकार की प्रार्थना हमको करनी है। Is it possible to pray at all times? क्या ये संभव है कि हम हर समय प्रार्थना कर I सके? shared with you how it is possible to pray at all times. और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यह संभव है कि हम हर समय प्रार्थना कर सके। Today I would like to share about another layer of spiritual atmosphere that we have to consciously build around our lives. और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से एक और स्तर हमको अपने आत्मिक जीवन में It बनाना is the जरूरी है atmosphere of praise. और वो है कि हम लोग आराधना का एक वातावरण बना के रखें। Hallelujah. I want Hallelujah. us to know, people of God, there is so much of power in the praises when we praise God. और जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं उसमें काफी सामर्थ्य है In fact, Bible talks more about praise than prayer. और जो प्रभु का वचन है वो स्तुति के बारे में काफी बोलता है ना कि प्रार्थना के बारे में। We have an entire book dedicated to the praises of God. और एक पूरी पुस्तक है जो कि प्रभु की स्तुति और आराधना के बारे में It's लिखी right है in the middle of the Bible, the book of Psalms. और वे बाइबल के मध्य में है जो कि भजन संहिता है। We see even all the creation praising God. और हम देखते हैं कि पूरी जो सृष्टि है वो प्रभु की आराधना करती है। We see the oceans, the mountains, the trees, and every creation praising God. और हम देखते हैं कि पहाड़, समुंदर और जितनी भी चीजें का सृजन किया गया है वो सब प्रभु की आराधना करती है। Book of Revelation that talks about heaven. What do we see in heaven all the time, 24/7? और प्रगटीकरण की पुस्तक में हम देखते हैं स्वर्ग के बारे में और स्वर्ग में हमको क्या दिखता है और लगातार It is filled with praise and worship. और हर समय वहाँ पे स्तुति और आराधना हो रही Right है। around the throne of God, there are 4 living creatures. और प्रभु के उस सिंहासन के पास में 4 ऐसे 4 दूतगण है। They are worshipping God, crying, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. जो हर समय प्रभु की आराधना कर रहे हैं और कहते हैं पवित्र पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर There पवित्र are है। innumerable angels in heaven. और वहाँ पे काफी सारे अनगिनत ऐसे स्वर्गदूत है They are worshipping God every moment, crying, Worthy is the Lamb of और God. वो हर समय कहते हैं कि प्रभु तू योग्य है। Book of Revelation also talk about the end of the times. और जो प्रगटीकरण की पुस्तक है वो अंत के दिनों के बारे में बताती है। There's going to be a great multitude that's going to be gathered in heaven. और वहाँ पे एक काफी बड़ी भीड़ जमा होगी। There's going to be people from every language, every tongue, every tribe, every nation, multitudes of people standing before the throne of God and worshipping, Hallelujah, worthy is the Lamb of और God. वहाँ पे हर गोत्र के, हर जाति के, हर भाषा बोलने वाले लोग जमा होंगे और वो सब प्रभु की आराधना वहाँ पे करेंगे। So God lives in the atmosphere of praise. और जो प्रभु जो है वो स्तुति आराधना के वातावरण में वो रहता है। You know, what is this is great thing about praise? और ये स्तुति के और आराधना का इतना महत्व क्यों है? Firstly, I want us to know that praise attracts the presence of God. और जो पहली चीज है कि वो है जब हम उसकी आराधना करते हैं तो वो प्रभु को वो आकर्षित करती It's है। like a magnetic force that draws the presence of God. और एक ये चुंबकीय सामर्थ्य है जो कि प्रभु की उपस्थिति को लेके आती है। How many of you want to attract the presence of God in your life? और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में बनी If रहे? you can learn to practice praising God at all times, you will be people who will be experiencing the presence of God upon your life. अगर आप सीखेंगे और उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप आराधना के द्वारा प्रभु की उपस्थिति को लेके आ Psalms सकते हैं। 22:3 says, Yet you're holy, enthroned on the praises of Israel. और भजन संहिता इसका 23वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में कहता है कि तू पवित्र है और तू इस्राएल के
स्तुति के ऊपर विराजमान है। Our God is a God who is enthroned on the praises of His people. और हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो कि लोगों की स्तुति और आराधना के ऊपर विराजित है। Make no mistake, God's position is not determined by our praises. और ये मत सोचिए कि हमारी जो आराधना के द्वारा प्रभु का जो बैठने का स्तर है और कितनी ऊंचाई पे वो है वो स्थापित करता है। Don't think that by we praising God, you will go few feet higher. और ऐसा मत सोचिए कि अगर हम थोड़ी और आराधना करेंगे तो वो कुछ गुना और ऊंचा उठ जाएगा। If you don't praise Him, don't think He'll come few feet lower. और आप अगर उसकी आराधना नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो नीचे आ जाएगा। Whether we praise Him or not, God is God. अगर हम उसकी आराधना करते हैं या नहीं, लेकिन प्रभु प्रभु है। Praise does not do any good for God. और स्तुति से कुछ प्रभु का भला नहीं होने वाला। In that sense. उस सोच के हिसाब से अगर But देखें praise does all the good for us. लेकिन जब हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं वो हमारे लिए कुछ अच्छा उत्पन्न करता Praise है। attracts the presence of God. जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो वो प्रभु को हमारी ओर आकर्षित करता है। Tell me how many of you would like to be around angry people? और मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग जो है जो गुस्सा करने वाला ऐसा व्यक्ति है उसके साथ में रहना चाहेंगे। Tell me how many of you would like to be around people who are complaining, murmuring, grumbling, who does not respect you, honor you, value you. Would you like to be around such people? और मुझे बताइए कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ में रहना चाहेंगे कि जो हर समय लड़ता है, झगड़ता है और कुछ गलत बोलता है और वो आपको तुच्छ जानता है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहना चाहेंगे? What is the kind of people that you like to hang around? और आप ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ में आप रहना अच्छा महसूस We all करेंगे? love to hang around with people who love us, who welcome us, who value us, who cheer us, isn't it? That's the kind of people we like to hang around with, right? और हम हर समय चाहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ में रहे जो हमसे प्रेम करता है, जो हमसे हमारे साथ में अच्छे से बात करेगा, हमारे साथ में चलेगा, उसकी और हमारी सोच मिलेगी, ऐसे लोगों के साथ हम रहना चाहेंगे। This is exactly what praises does unto God. और यही जो है प्रभु की स्तुति आराधना प्रभु के लिए करती है। When we praise God, जब हम उसकी स्तुति करते हैं we are telling God, we love you, we value you, we respect you, we honor you, we cherish you, we delight in you, we need you. और जब हम उसकी स्तुति आराधना हम करते हैं, हम प्रभु से कहते हैं कि हम तुझसे प्रेम करते हैं, आप हमारे लिए बहुमूल्य है, आप हमारे लिए एक महान व्यक्ति है और हम आपकी स्तुति आराधना करेंगे। Now you understand why we praise God? और आप समझ रहे हैं कि हम किस लिए प्रभु की आराधना करते हैं? Praise welcomes the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति की आमंत्रण के लिए हमको स्तुति आराधना I करना will है। tell you, if you become a people who praises God, will be people who will be experiencing the presence of God in our lives. और जब हम उस योग्य बनेंगे कि हम उसकी आराधना हर समय करें तो हम ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो कि उसकी उपस्थिति को हर समय लेके And I'm चलेंगे। sure that you all know what happens when the presence of God manifests in our life. और आपको पता होगा कि क्या होता है कि जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हो रहती In है the presence of God, mountains melt like wax. और प्रभु की उपस्थिति में चट्टान जो है वो मोम के समान पिघल जाती है। In the presence of God, all the things change, they shift. और प्रभु की उपस्थिति में हर चीजों में बदलाव आता है। When you're walking in the presence of God, you'll not be able to walk in sin. और जब प्रभु की सामर्थ में आप अगर चले गए तो आप पाप में नहीं चल सकते। When you're consciously walking in the presence of God, you cannot walk in anger, you cannot walk in lust, you cannot walk in fear. और जब आप प्रभु की उपस्थिति को ग्रहण करके चलेंगे तो आप किसी भी प्रकार के पाप में आप नहीं पड़ेंगे। So I would like to encourage you to cultivate this habit of praising God at all times. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और ये कहता हूँ कि आप इस तरह से अपने आप को बनाइए कि आप हर समय प्रभु की आराधना कर सके। Is it possible to praise God at all times? क्या ये सही है कि हम हर समय प्रभु की आराधना कर सकते हैं? Is it possible to praise God in all circumstances? और हर परिस्थिति में क्या हम उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं? Is it possible to praise God when bad things happen to you? जब कुछ गलत चीज हमारे साथ में होता है तब हम क्या उसकी स्तुति कर सकते हैं? Is it possible to praise God when things don't go your way? जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है तब क्या हम उसकी आराधना कर सकते हैं? Is it possible to praise God when things does not happen according to your time calendar? और जब हमने नियुक्त करके रखा है कि इस प्रकार से होना है, अगर उस प्रकार नहीं हो रहा है We तब हम will be उसकी able स्तुति to कर सकते हैं। we'll be able to praise God when we understand that God is good all the time. और हम उसकी स्तुति कर पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि प्रभु हर समय भला है। Can somebody turn the AC to 22 or something? It's so high. We'll be able to praise God when we know that God can work all things together for our good. और हम उसकी स्तुति कर पाएंगे जब हमको पता चलेगा कि प्रभु हर चीज
हमारे लिए अच्छा ही भला उत्पन्न करता है। Then there is a story that is told, a old story that is told of an African king, okay? और एक पुरानी कहानी है जो कि एक अफ्रीकन किंग के बारे, राजा के बारे में थी। This king had one servant. और ये राजा का एक सेवक था। This servant is always known for his positive outlook. और ये जो सेवक था वो हर समय हर चीज को अच्छा ही देखता था। You know, whatever happens, he always had this habit to tell that it is for good. और जब जो कुछ भी होता है, ये जो सेवक था वो हर समय कहता कि ये सब अच्छा ही हो रहा है। So one day this king and this his servant went for hunting. और एक दिन ये राजा और उसका सेवक शिकार के लिए जाते हैं। This servant's job was to load the king's gun with bullets and give him. और ये जो सेवक का काम था कि जो राजा के लिए जो गन है, बंदूक है, उसमें गोली डालना और ये सब चीज। Someday, on that particular day, he committed some mistake and he loaded in a wrong way. और उसने एक दिन गलती किया और जो बंदूक के अंदर जो गोली डाली वो गलत रीति से उसने डाली। So when the king took the gun to shoot, I think the bullet hit his thumb and the king lost his thumb. और जब शिकार को मारने के लिए राजा ने जब बंदूक को चलाई तो वो जो उसकी गोली थी वो उसी को लग गई और उसका अंगूठा कट गया। You can imagine the pain now. और आप सोच सकते हैं कि कितना दर्द उसको हो रहा He होगा। was bleeding. और उसका खून बह रहा He है lost his thumb. और उसका अंगूठा टूट गया है। The servant is looking at that king's lost thumb. और जो सेवक है वो राजा का वो अंगूठा जो कट गया है उसको देख रहा है। He's saying it's good. What has happened is good. और वो कहता है राजा को कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ है। First of all, this king is cringing with pain. और पहले ही वो राजा दर्द से वो तड़प रहा है। And now he's hearing his servant tell him it's all good. और वो सेवक राजा को बोल रहा है कि जो भी हुआ ये अच्छा हुआ। The king really got upset and mad with him and throws him into a prison. और वो राजा उसको इसके साथ में काफी गुस्सा होता है और उसको बंदी गृह में डाल देता है, जेल में डाल देता है। And after some day, the king goes into some remote place in the African jungle to hunt. और फिर अगली बार राजा फिर एक बार शिकार के लिए जाता है कोई अफ्रीका के जंगल में। Then unfortunately, he get caught by tribal people or cannibals there. और वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं जो कि इंसानों को खाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में वो फंस जाता है। They thought we got some good tandoori chicken for us today. और वो आदिवासी लोग सोचने लगे कि आज हमको अच्छा तंदूरी चिकन मिल गया है खाने के लिए। So they tie him to the stake. और वो उनको उसको लकड़ी से बांध देते हैं। They're about to lit him to fire and roast him and eat. और उसको वो आग लगा के उसको रोस्ट करने वाले हैं और उसको जलाने वाले हैं। And you know, these cannibals, the tribal people are very superstitious people. और ये जो आदिवासी लोग हैं वो काफी तर्क वितर्क वाले होते हैं। Just that moment when they were about to lit that fire, they noticed that this king did not have a thumb. और जब वो उस आग से उस राजा को जलाने वाले थे, उसी प्रकार तभी उन्होंने देखा कि इसका उंगली अंगूठा जो है वो कटा हुआ है। That was a bad omen for them. और वो उनके लिए एक बुरा ऐसा संदेश था। They only eat what is whole. और वो केवल ऐसी चीज को खाते थे जो कि पूरी बनी हुई है। So king was saved. They released him that day. और वो राजा को वो छोड़ देते हैं क्योंकि उसका अंगूठा कटा है वहां से। Now, as he was returning, और वैसे जब वो वहां से वापस जा रहे थे, he remembered what my servant told on that day it's good was actually good. और उसको राजा को याद होता है कि जो मेरे सेवक ने उस दिन कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसको ये याद आता So है। he felt sad for him. Achha, what did I do? I put him into the prison. और वो राजा को बुरा लगता है कि क्यों मैंने अपने सेवक को इस जेल में डाल दिया, उसको वापस First ले। he goes to the prison and brings the servant out of the prison. और वो पहले जाता है और वो सेवक को जेल से वापस लेके आता है। And he said, I'm really sorry that day I got upset with you, but actually what you said was right. What you said was right. और वो राजा उसको कहता है कि सेवक मैं काफी गुस्से में था, लेकिन तूने जो कहा था कि वो अच्छा ही है। Now he says, I'm so sorry for having to put you in the prison for so many months. और मुझे माफ करना कि मैंने इतने महीने तक के तुझे बंदी गृह में रखा। So the response of the servant was, even for me, for you to put me in the prison was actually a good thing. और वो सेवक बोलता है कि तूने मुझे बंदी गृह में रखा, वो भी मेरे लिए अच्छा था। The king was amazed, and how can this be good to you when I put you in the prison unjustly for so many months? और वो राजा सोचता है कि ये तेरे लिए कैसे अच्छा है, इतने महीने तक के मैंने तुझे बंदी गृह में रखा है, तभी भी तू बोल रहा है अच्छा है। The servant replies, if you had not put me in the prison, अगर तूने मुझे अगर बंदी गृह में नहीं डाला होता, then I would have been with you. तो मैं आपके साथ में उधर जाता। Then they would have put me on the stake and I would have been eaten by them. तो वो लोग मुझे पकड़ते और मुझे जला के खा लेते। You know, so anything that happens in our life, when we trust in God, we know it is for good.
और जो भी चीज हमारे जीवन में होती है, जब हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो हमको पता है कि वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। What may seem like a problem can actually be a good thing. और जो चीज हमको लग रही है कि हमारे लिए समस्या है, हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छी बात हो। Let's face it, life is tough. और हम इसका सामना करें, जो जीवन है वो काफी मुश्किल है। Jesus never said life is going to be easy for you. और प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि जो जीवन है वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। Jesus never said life is going to be fair for you. और उसने इस प्रकार से नहीं कहा कि आपका जीवन है ये काफी भला रहेगा। And Jesus said you be good and everybody will be good to you. और उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम हर लोगों के साथ में अच्छे बने रहो और लोग भी तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। You know, you be more good, people really will hate you more. और अगर आप लोगों के साथ में जितना अच्छा रहेंगे, लोग उतना ही आपका विरोध करेंगे। Now we get angry. I've been good to them, but people are not good to me. और मैं देखता हूँ कि कई बार मुझे गुस्सा आता है कि मैं लोगों के साथ अच्छा हूँ, लेकिन लोग मेरे साथ में बुरा Now, if करते हैं। everybody are good to you, then it's so easy for you to be good. और अगर हर कोई अच्छा अगर आपके साथ में रहेगा तो ये काफी आसान है कि आप भी उस प्रकार रह सकते हैं। You know, so life is like that. और जीवन इसी प्रकार से है। But we need to trust God that all things work together for good. लेकिन हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि हर चीजें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। And we will be able to praise God in all circumstances. तभी हम प्रभु की हर परिस्थिति में हम उसकी स्तुति आराधना कर We'll be सकेंगे। praising God every morning, और हर सुबह हम उसकी आराधना करेंगे, every afternoon, हर दोपहर में उसकी स्तुति every करेंगे, evening. हर शाम में उसकी स्तुति करेंगे। While growing up in my school, जब हम लोग स्कूल में जब हम लोग बड़े हो रहे थे we तब, had every morning this, this anthem. और ये Not the national anthem, the praise song we had. और हर सुबह इस प्रकार से एक आराधना का गीत हम लोग गाते थे। Praise Him in the morning, Praise Him, सुबह उसकी स्तुति करेंगे praise Him in the evening, और शाम में उसकी स्तुति करेंगे praise Him in the noon time, और दोपहर में उसकी स्तुति करेंगे praise Him when the sun goes down. और जब सूरज अस्त होता है तब भी हम उसकी स्तुति करेंगे। Thank Him like that. I still remember we singing that rhyme every morning when I was growing up. और इस प्रकार से हम इस गीत को गाते थे जब हम बड़े हो रहे थे तब। I didn't know about that power in praising God those times. और उस समय मुझे पता नहीं था कि प्रभु की स्तुति करने में कितनी सामर्थ है। But this evening I want to understand this great power in praising God. लेकिन इस शाम के समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं उसमें काफी सामर्थ है। Is praising God difficult? क्या प्रभु की आराधना करना मुश्किल है? Hello, is praising God difficult? क्या प्रभु की आराधना करना मुश्किल है? But do you praise God लेकिन क्या हम उसकी आराधना करते all हैं the time? हर समय? If it is not difficult, अगर वो मुश्किल नहीं है then why are you not praising तो God? हम उसकी स्तुति आराधना क्यों नहीं करते? Most of the things that God has called us to do is very easy things, और जितने भी कार्य प्रभु ने हमको करने के लिए कहा है वो काफी आसान है simple things. और साधारण है। Is praying difficult? क्या प्रार्थना करना काफी मुश्किल है? Yes or no? हाँ या ना? Why you don't pray? फिर क्यों आप प्रार्थना नहीं करते? There's so many things, it's not difficult. और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि मुश्किल नहीं है, But we need to have the passion, love. लेकिन उसके लिए हमको वो तड़प होनी चाहिए, हम उसके लिए प्रेम होना चाहिए। See, if we love somebody, we'll go to any extent to do good to that person. अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं उस व्यक्ति के लिए अच्छा करने के लिए। Whether we like to admit or not, if we have lack of prayer, lack of praising, it actually we lack the love for God. अगर आप उसको कबूल करें या ना, लेकिन अगर हम प्रार्थना में ज़्यादा समय नहीं बिता रहे, अगर हम उसकी आराधना में ज़्यादा समय नहीं बिता रहे, तो इसका मतलब यह है कि हम उससे उतना प्रेम नहीं करते। How many of you been in love in your life? How many of you been in love in your life? और आप में से कितने लोग प्रेम में पड़े हैं? Before marriage, after marriage? और शादी से पहले या शादी के बाद में? Before marriage, I don't know with whom you are in love. शादी से पहले पता नहीं आप किससे प्रेम में होगे, But after marriage, I hope it's with your spouse. और शादी के बाद में सही में आप अपने पत्नी के साथ में और अपने पति के साथ में आप प्रेम में पड़े Or होंगे। anybody for that matter, when you love that person, it is easy to do what that person asks you to do, isn't it? और जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तब हमारे लिए आसान हो जाता है, अगर वो व्यक्ति हमें कुछ करने के लिए कहता है तो हम वो करेंगे। Jesus simply put it, if you love me, you will obey me. प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। In other words, if you don't obey, अगर उसका दूसरा अर्थ है, अगर उसकी आज्ञा को हम नहीं मानते you don't love me. तो उसका मतलब है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। Either you love God, और एक तो है कि अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो, or either you don't love God. या आप उससे प्रेम नहीं करते हैं। There's nothing called neutral here. और उसके बीच में ऐसा कोई स्तर नहीं है। Okay?
So I want us to know how much of us do we really love God. और आप में से कितने लोग सही में उससे प्रेम करते हैं। So praises attracts the presence of God. और जो आराधना है, स्तुति है, वो प्रभु की उपस्थिति को आकर्षित करती है। Praises creates the atmosphere for miracles. और जो जब हम उसकी स्तुति करते हैं, वो एक चमत्कार का एक वातावरण को वो बनाती है। How many of you want to experience healings and miracles in your life? और आपके जीवन में कितने लोग चंगाई को देखना चाहते हैं, Breakthroughs. चमत्कार को देखना चाहते हैं, छुटकारा देखना चाहते You हैं? want to see that? क्या आप देखना चाहते हैं Then ये? you need to build an atmosphere of praises. तो उसके लिए आपको स्तुति और आराधना का एक वातावरण बनाना Two जरूरी है। examples that I would like to give from scriptures and close. और दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा वचनों से। In 2 Chronicles chapter 20, there is a story about a king called Jehoshaphat, king of Judah. और दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि यहोशाफात राजा के बारे में वहाँ पे एक कहानी को लिखा गया He है। was one of the godly kings. और वो एक प्रभु के पीछे चलने वाला ऐसा राजा था। At one point of time in his life, there were coalition of armies that came against his nation. और एक समय ऐसा हुआ कि काफी सारे राज्य मिलके एकजुट होके उसके विरुद्ध में युद्ध करने आए। They almost came near his territory and threatened to destroy them. और वो उसके राज्य के पास में करीब आके और उसको धमकी दे रहे कि हम तेरे राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। They were a vast army. और एक काफी बड़ी सेना थी। They were a strong army. और वो काफी सामर्थ्यशाली ऐसी सेना थी। So that brought fear into this king. और ये राजा के दिलो दिमाग में वो सेना को देख के एक भय आ गया। And naturally, what would be the response of the kings those days? और उस समय के राजाओं का जो प्रति उत्तर था उस समय में, He would have called his internal ministers, officials. और वो ये करते थे कि अपने जो निजी उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाते And they would thought about some strategies how to counter this challenge. और वो उन प्रधानों को बुलाते और उनसे बातचीत करते कि इस युद्ध का सामना हम कैसे करेंगे। The common strategies those days were these. और जो साधारण से जो योजना वो लोग बनाते थे वो इस प्रकार से थी। They could go and make allies with the other nations and call them for help. और वो दूसरे लोगों के राज्यों में जाते और उनसे वो उनको अपने साथ में मिलाने की कोशिश करते और उनसे मदद लेते। Or probably go to the enemy nation itself and surrender and make a treaty with them and give them what they need. या हो सकता कि वो जाते और जो उनके विरुद्ध में जो सेना आई उनके सन्मुख में जाते और उनके साथ में वो लोग समझौता करते। But this king does something different. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये राजा कुछ अलग करता है। Verse 3 says, then Jehoshaphat was afraid. और यहाँ पे दूसरा इतिहास इसके 20वें वचन और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि यहोशाफात है वो डर गया। Is it natural to get afraid in our lives when we see a problem? क्या ये स्वाभाविक है कि अगर समस्या हमारे जीवन में आती है तो हम डर जाते हैं? When you see some challenge in your office, is it natural to get afraid that you're going to lose your job? और जब कार्य क्षेत्र में अगर कोई मुश्किल अगर आती है तो ये स्वाभाविक है कि हमको डर लगता है कि कहीं हमारी नौकरी ना चले जाए। Some great issues are happening in the family. Is it natural for us to have fear that this marriage is going to break? और अगर हमारे पारिवारिक जीवन में अगर कोई संघर्ष हो रहा है तो हमको इस प्रकार से लगता है, हम डर जाते हैं कि ये जो शादी है हो सकता है टूट जाए। I want us to understand when we face problems in our life, we are human and we do get fear. और जब कोई भी जीवन में समस्या आती है, संघर्ष होता है तो हमको एक डर आता है, एक स्वाभाविक रीति से। Anybody here who has never got fear in your life? यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी डरा नहीं हो किसी भी चीज से? Or you're only making others fear? या हो सकता है कि केवल आप दूसरे लोगों को आप डराते हो। Okay, it's natural for us all to feel fear, afraid when we go through various situations in our lives. और ये स्वाभाविक है कि जब भी हम मुश्किल से जाते हैं या कोई भी समस्या से गुजरते हैं तो हम डर जाते But हैं। look at it, he was afraid and did something. He set his face to seek the Lord, proclaimed a fast throughout all Judah. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहोशाफात जब वो डर गया तब वो प्रभु के खोज में वो लगा गया, अपना मुख उसने प्रभु की ओर लगाया और पूरे यहूदा में उसने उपवास का प्रचार करवाया। Now I want to ask, how are we responding to various challenges that we face in our life? और जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है उसका प्रति उत्तर हम लोग किस प्रकार से देते हैं? I want to really think about this. और इसके बारे में आप जरा सोचिए। Are you using your own wisdom to get out of the problem? क्या आप हमारी स्वयं के बुद्धि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उस परिस्थिति से बाहर निकले? Are you running to different people seeking help? क्या हम दूसरे अलग अलग लोगों के
पास में दौड़ रहे ताकि हम उनसे मदद ले सके। But here the king was in a situation that no man could help him. और यहाँ पे हम देखते हैं राजा ऐसी परिस्थिति में जहाँ की कोई मनुष्य उसकी मदद नहीं कर The सकता, king was in a situation none of his wisdom is going to help. और वो ऐसी परिस्थिति में था जहाँ उसकी बुद्धि या उसकी समझ उसको कोई मदद नहीं करने वाली From थी। time to time in our lives, we all will find ourselves in situation where no man can help us to get out of the problem that we are in. और हमारे जीवन में भी ऐसे समय आएगा जबकि हम किसी भी मनुष्य के ऊपर में भरोसा नहीं रख सकते, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। I want us to understand those are the times, even though we are afraid, even though we are worried, even though we are helpless, at that moment we need to do what this king did, go into the presence of God, put our trust in Him and seek Him. और ऐसी परिस्थिति में जब हम डरे हुए हैं, जब हमको हताश है, निराश है, जहाँ हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार से राजा ने किया, हमको प्रभु की उपस्थिति को खोजना है। Not to just quickly wind up what I'm sharing, as this king and the entire nation, they fast, they pray, God sends a word to them through a prophet. और जब ये राजा और उसके साथ में जो पूरा देश था, जब वो उसकी खोज में लगे रहे और वो उपास कर रहे थे, तब उसका प्रभु का वचन उनको मिलता है। God sends a word telling them, the battle belongs to me. और प्रभु का वचन इस प्रकार से आता है कि ये युद्ध मेरा है। You can go into the battlefield, आप युद्ध के क्षेत्र में जा सकते you हैं can take your position, और अपनी जगह को, आप स्थान को आप ग्रहण करें do not be afraid, और आप डरे नहीं, I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. The same thing the Lord wants to speak to us this evening. और यही शाम को प्रभु हमसे यही कहना चाहता The है, Lord will fight for you. और प्रभु आपके लिए वो युद्ध करेगा, Lord will vindicate for you. और वो आपका न्याय वो करेगा, Lord will stand for you. वो आपके लिए खड़ा रहेगा, Lord will reward you. वो आपको आशीर्वादित करेगा। You take your position. आप अपने स्थान को ग्रहण करें। The king believed this word. और जो राजा है उसने विश्वास किया इस वचन पर। Now I want you all to imagine this battle scene, okay? और आप जरा सोचिए ये जो युद्ध होने वाला है उसको, I want you to know what brought this victory. और आप देखिए कि ये विजय उनको कैसे मिली। For a moment, I want you all to imagine this scene with me. और थोड़ा सा आप सोचिए मेरे साथ में, इस चित्र को आप देखें। There is a great army that is coming against the nation of Judah. और सामने काफी सामर्थ्यशाली एक सेना है जो कि यहूदा के विरुद्ध में युद्ध करने आ रही है। How are they coming? और वो कैसे आ रहे हैं? They're coming with spears. और वो भाला लेके आ रहे हैं, They're coming with bows and arrows. और वो बाण और तीर लेके आ रहे हैं, They're coming with swords. और वो तलवार लेके आ रहे They're हैं, coming with horses and chariots. और वो रथों और घोड़ों को लेके आ रहे They're हैं, coming with great weapons. और वो काफी सारे अस्त्र और शस्त्र लेके आ You रहे know हैं। what did this king do? और लेकिन ये राजा क्या कर रहा है? How are these people going in the battlefield? और ये राजा और उसके लोग कैसे जा रहे हैं युद्ध में? Probably they don't have guitar and drums and keyboards those days. और उस समय पे गिटार, कीबोर्ड या ड्रम्स नहीं होगा, But they probably had harps and lyres and tambourines. Those are the people singing and marching into the battlefield. Can you just imagine that scene? और वो आप देखिए कि उस समय में वो लोग डफ, थाली और झांझ और ये सब लेके बजाते हुए वो जा रहे हैं। Can you imagine what the enemy nation would have thought about these people? क्या आप सोच सकते हैं कि जो युद्ध करने के लिए जो सेना आ रही है वो क्या सोच रहे होंगे? You know, they would have thought these people are foolish. और वो देख रहे होंगे कि ये लोग मूर्ख है। Those people have thought that we are going to fight them left-handed, kill them and completely annihilate them. और वो सेना सोच रही होंगी कि हम लोग इनको मार डालेंगे, काट डालेंगे और पूरी तरह से इनको हम नष्ट कर देंगे। Many times what we do as people of God will seem as foolishness to the people of the world. और कई बार जो हम प्रभु के बच्चे होने के नाते जो हम करेंगे वो लोगों के लिए वो मूर्खता दिखाएगा। Can I say something? क्या मैं आपको कुछ कहना चाहूँ? In fact, the people around us should look at us and say we are foolish. और Only then it means that we are living a normal Christian life. जब लोग हमारी ओर देख के अगर कहेंगे कि ये लोग मूर्ख लोग हैं, तभी हमको पता चलेगा कि हम लोग सही में मसीह जीवन बिता रहे हैं कि नहीं। If we are not appearing as foolish to the people of the world, then there's something wrong in us. अगर हम दूसरे लोग अगर हमको देख के ये नहीं कहते कि ये लोग मूर्ख है, तो कुछ गलत हमारे अंदर You know, है। they should think these foolish people, I don't know, every Sunday they go to church. Are they saying that? और हो सकता है कि लोग इस प्रकार से कहेंगे कि ये मूर्ख लोग है कि हर रविवार को जाके प्रभु की आराधना These करते foolish हैं। people are going praying and singing and doing all these things. They should look at us and say, foolish people. वो लोग हमारे ओर देख के ये कहना चाहिए कि ये लोग मूर्ख लोग है कि हर रविवार को ये लोग जाते हैं, गीत गाते, आराधना करते, ये मूर्ख है। If you are appearing to them smart and wise to them, I doubt your Christian life. अगर लोग आपको सोचते हैं कि ये लोग काफी बुद्धिमान है या स्मार्ट है, तो आपका जो मसीह You know जीवन what के did लिए Goliath think when संकोच है। David is coming in the
what do you call that, sling and the stone, what did Goliath say? और जब दाऊद जब गोफन और पत्थर को लेके गोलियत के सामने गया तो उसने क्या कहा? Here Goliath, the huge giant, is full with armor and weapons and ready to face who's going to come against him. और गोलियत ये काफी सामर्थ्यशाली था, वो अपने अस्त्र और शस्त्र को लेके वो सेना का सामना करने जाता है। Here is a small boy who is coming with a sling and stones. और ये दाऊद एक छोटा बच्चा, वो वहां पे एक गोफन और पत्थर को लेके वहां पे उससे युद्ध करने जा रहा है। It appeared foolish to Goliath. और गोलियत को ये मूर्खता लगा कि ये क्या कर रहा है। In fact, he said, "Do you think you have come to chase a dog?" और वो इस प्रकार से कहता है कि तुझे मैं एक कुत्ते को भगाने के लिए तू यहाँ आया है। You know, he says, "You might come in the armor, in the sword, and whatever, but I come to you in the name of the Lord." लेकिन दाऊद इस प्रकार से कहता है कि तू अपनी सामत और तलवार और ये सब लेके आया, लेकिन मैं प्रभु के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूँ। You know, when did actually this battle was won? और उसका युद्ध वो कब जीत गया था? Verse 22 says, और 22वें वचन में हम देखते हैं, when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir who had come against Judah, so that they were rooted. और 22वें वचन में हम देखते हैं कि जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, अमोबियों और सोयर के पहाड़ के देश के लोगों को जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। Did you notice that in your Bibles? क्या आपने ये वचन को अपने बाइबल में देखा है? Projection team, I don't know, but I hope you all have your Bibles and you have seen that. और दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसके 22वें वचन में हम यहाँ पे देखते You हैं। want to know when the exact moment the battle was won? और ये कौन सा क्षण था जब उनको युद्ध में विजय मिला था? The battle was won at the moment when they sang praises unto God. और जब वो लोग प्रभु की स्तुति और आराधना करने लगे, उस समय उनको उस युद्ध में विजय प्राप्त हुआ। You want to know when you're going to win your battles? और आपके जीवन में आप कब विजय पाएंगे? When you stop grumbling. जब आप कुड़कुड़ाना बंद करेंगे, When you stop complaining. जब आप दोष लगाना बंद करेंगे, When you stop talking words of unbelief. और अविश्वास के शब्दों को आप बोलना जब बंद When करेंगे, you stop talking words of doubt. और जब आप संकोच को हटाएंगे अपने When you जीवन से, stop talking words of fear. और भय के हर शब्दों को आप अपने जीवन And से when जब you हटाएंगे, start praising God. और जब आप उसकी आराधना, प्रभु की आराधना When करना you चालू believe करेंगे, that God's presence is with you. जब आप विश्वास करेंगे कि उसकी उपस्थिति आपके साथ में When you है, believe that God's going to fight your battles. जब आप विश्वास करेंगे कि प्रभु आपके लिए लड़ने वाला है, When you believe the presence of God has gone before you. जब आप ये विश्वास करेंगे कि प्रभु की उपस्थिति आपके आगे गई है, That's the moment you're going to see your battles being won. तब आप देखेंगे कि आपके युद्ध में आपको विजय ऑलरेडी मिल चुकी है। You see, these people, you started praising even before the miracle had happened. और यहाँ पे हम देखते हैं कि चमत्कार होने से पहले ये लोग प्रभु की आराधना करने These लगे, people started praising even before the battle was won. और युद्ध में जीत से पहले ये लोग प्रभु की आराधना करने लगे। Any fool can praise God after seeing the miracle. और कोई भी मूर्ख है जो कि प्रभु की आश्चर्य को देख के उसके बाद में वो आराधना करे। You don't need faith to praise God when the miracle has happened. और आपको विश्वास की जरूरत नहीं है जब आपने चमत्कार को देख लिया उसके बाद में But उसकी आराधना when करने के you लिए। don't see anything yet happened, लेकिन जब आप किसी भी चीज को नहीं देख रहे होते but हुए, you believe that God has heard your prayers, लेकिन आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना when you है, believe that God is moving in your life, जब आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है, and that takes faith. और वो विश्वास के लिए होता है। Hallelujah. Hallelujah. In Acts chapter 16 we read about another two people. और प्रेरितों के काम इसके 16वें अध्याय में हम देखते हैं और दो व्यक्ति के बारे में, Those names are Paul and Silas. और वो पौल और सिलास नाम के ये दो व्यक्ति They है, were beaten and bruised and tied up and put into the prison for the sake of the gospel. और उनको मारा गया, लताड़ा गया और उनको बंदी गृह में डाला गया प्रभु के वचन के लिए। Can you imagine the scene for a moment, please? और यहाँ पे थोड़ा आप सोचिए, इस दृश्य को आप देखिए। They cast out a demon from a girl. और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को एक लड़की में से निकाला था, As a result, they were thrown into the prison. और उसके वजह से उनको बंदी गृह में डाला They गया, were beaten badly. और उनको काफी मारा गया, They were bleeding. और वो लहूलुहान हो They गए, were tied with chains. और उनको बंधनों में डाला They गया, were thrown into a dark cell. और एक अंधकार वाले बंदी गृह में उनको And डाला it गया। says at the midnight, Paul and Silas started singing hymns and praising God. Can you believe that? और आप देखिए कि उस प्रकार से लिखा है कि उस मध्य रात्रि में वो लोग प्रभु की आराधना करने लगे, पौल और सिलास। What amazes me more is this. और ये चीज मुझे आश्चर्यचकित करती है, King Jehoshaphat and his people
praised God even before the miracle happened, right? और यहोशाफात और उसके लोगों ने चमत्कार होने से पहले प्रभु की आराधना करने लगी। Answer me. Did they expect a miracle or not? Jehoshaphat and his people. आप उत्तर दीजिए कि उन्होंने ये सोचा था कि उनको विजय मिलेगी कि नहीं। Now I want to ask you, did Paul and Silas expect a miracle? और यहाँ पे मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पौल और सिलास ने कभी सोचा था कि एक चमत्कार वो लोग देखेंगे अपने जीवन में? They praised God without expecting a miracle. वो लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे, कभी ये ना सोचते हुए कि उनके जीवन में कोई चमत्कार वो But देखेंगे। what made them to praise God? लेकिन क्यों वो प्रभु की आराधना कर रहे थे? They didn't praise God so that they can get a miracle. और वो इसलिए उसकी स्तुति आराधना नहीं कर रहे थे कि उनके जीवन में वो कोई चमत्कार को वो It's देख पाए। not something like this in the midnight. Paul and Silas were not getting sleep. और ऐसा नहीं है कि मध्य रात्रि में पौल और सिलास को नींद नहीं आ रही है। You can imagine the pain that they're going through. आप सोच सकते हैं कि कितना दर्द से वो लोग जा रहे होंगे। Probably Silas thought, "Hey, Paul, what you know? I heard that pastor preaching. If you praise, you will see miracles. Can we just praise?" और सिलास पौल को बोलेगा कि मैंने सुना है कि एक पास्टर ने इस प्रकार से कहा कि हम अगर उसकी स्तुति आराधना करेंगे तो चमत्कार को हम देखेंगे। No, they did not praise to have a miracle in their life. और उन्होंने इसलिए आराधना नहीं करी कि वो एक चमत्कार उनके जीवन में They देख पाए। praised God because that was the extent of love that they had for God. उन्होंने इसलिए प्रभु की आराधना करी क्योंकि वो इतना प्रभु से प्रेम करते थे That was the extent of faith that they had in God. और उनका इतना बड़ा महान विश्वास प्रभु पर था। Miracle or no miracle, we are going to praise God. अगर चमत्कार हो या चमत्कार नहीं हो हमारे जीवन में, लेकिन तभी भी हम प्रभु की आराधना करेंगे। Healing or no healing, I'm going to praise God. और अगर हमें चंगाई मिले या चंगाई ना मिले, लेकिन तभी भी हम प्रभु की आराधना करेंगे। Promotion or no promotion, I'm going to praise God. और हमारी उन्नति हो या ना हो, लेकिन तभी भी हम प्रभु की आराधना करेंगे। Blessing or no blessing, I'm going to praise God. अगर हम आशीषित है या आशीषित नहीं भी है तो भी हम प्रभु की स्तुति Prayers करेंगे। are going to be answered or not answered, I'm going to praise God. मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन तभी भी मैं प्रभु की स्तुति Because करूंगा, my God is good all the time. क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है हर समय। I've experienced the love of God. और मैंने उसके प्रेम को अनुभव किया I है have tasted the grace of God. और मैंने उसके अनुग्रह को चखा है I have full eternity waiting for me to live in His glory. और पूरा अनंत काल का जीवन मेरे लिए राह देख रहा है कि मैं उसके साथ में जीवन When I बिताऊं। look and compare all the glory of the heaven that is waiting for me, the pain, the suffering that I'm going through is incomparable. और जब मैं देखता हूँ कि पूरे स्वर्ग में जितनी भी चीजें मेरे लिए राह देख रही है, जो इस संसार का जो दर्द है, दुख है, वो मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। They surrounded themselves with the atmosphere of praise. और उन्होंने अपने जीवन में वातावरण आराधना का एक वातावरण उन्होंने What am I बनाया। sharing this evening? और इस शाम को मैं आपसे क्या कहना चाहता There is हूँ, power in praising God. और प्रभु की आराधना स्तुति में सामर्थ है। Praise attracts the presence of God. और जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं, वो प्रभु की उपस्थिति को वो आकर्षित करता है। Praise creates the atmosphere for miracles. और जो प्रभु की जब हम आराधना करते हैं तो एक वो चमत्कार के लिए एक वातावरण को वो बनाता है। It's written when Paul and Silas were praising God, और इस प्रकार से लिखा है, जब पौल और सिलास प्रभु की आराधना कर रहे थे there was an earthquake, the earth shook, और भूकंप हुआ और धरती हिल गई prison doors were opened, और जो बंदी गृह के दरवाजे खुल गए chains were broken, और उनके जो जंजीरें वो खुल गई even all the people around them were free. और जितने भी लोग उनके साथ में बंदी गृह में थे सब छूट गए। That's the power of praise. और ये सामर्थ्य है स्तुति और आराधना में। So when you are surrounded with the atmosphere of praise, और जब हम स्तुति आराधना के वातावरण में हम बने रहेंगे, every time you're praising God, जब भी हम उसकी आराधना हम कर रहे हैं saying, God, you're good, और कहेंगे प्रभु आप भले है, God, you're loving, आप कितने प्रेमी आप प्रभु God, है, you're caring, आप कितनी हमारी देखभाल God, करते you're my हैं, Father, आप मेरे पिता है, God, I love you. मैं आपसे प्रेम करता हूँ, Jesus, I exalt your name. यीशु मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ, Jesus, I thank you that you're with me. और यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आप मेरे साथ Jesus, I है, thank you that you're fighting my और battles. यीशु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे Thank युद्ध को you, लड़ रहे Jesus, हैं, that you're my और shepherd. धन्यवाद यीशु आप मेरे चरवाह हैं I'm your sheep. और मैं आपकी भेड़ हूँ I'm safe and secure in your hand. और मैं सुरक्षित हूँ आपके हाथों में, No weapon that is formed against me shall और prosper. कोई भी शस्त्र जो मेरे विरुद्ध बना है वो कभी सफल When नहीं I'm होगा। walking through the fire, you're with me. जब मैं अग्नि से जाऊँ तब आप मेरे साथ When हैं, I'm going through the floods, you're with me. जब मैं तूफान से जाऊँ आप मेरे साथ हैं, When I'm facing sicknesses, you're with me. जब मैं बीमार हूँ तब आप मेरे साथ When हैं, I'm facing failures, you're with me. जब मैं असफल हूँ तब भी आप I'm मेरे going साथ to हैं,
praise you, nothing is going to stop praising you. और मैं हर समय आपकी स्तुति आराधना करूंगा, कोई भी When चीज you मुझे नहीं surround रोकेंगे। yourself with such praise, all doubts, all fears, all negativism, all grumblings, all complainings, all murmurings will go, and that atmosphere will create for the glory of God to invade your life, and you'll see your life changing. और जब इस प्रकार से आप प्रभु के स्तुति और आराधना का वातावरण करेंगे, हर प्रकार का डर, भय, शंका, संकोच और निराशा सब आपके जीवन से निकल जाएगी। Shall we all rise up in God's presence this evening आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए इस and समय make this decision और ये निर्णय हम ले that I am going to praise God. कि हम प्रभु की आराधना हर समय करेंगे। I hope somebody will take this decision this evening. और मेरा विश्वास है कि कोई ना कोई व्यक्ति ये निर्णय हमारे जीवन में आज लेगा। Just practicing this thing for a month and come and talk to me. और 1 महीने तक के लगातार आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप आके मुझसे बोले। How many of you would accept this challenge? कितने लोग इस चुनौती को लेंगे? How many of you will accept this challenge? कितने लोग इस चुनौती को लेंगे? Every living breath you start praising God. और हर एक जो जीवित मुख है वो प्रभु की Start स्तुति करेगा। praising God for a month. प्रभु की स्तुति आराधना 1 महीने तक हम Praise करेंगे Him in the morning. और सुबह हम उसकी स्तुति करेंगे Praise Him in the noon time. और दोपहर में उसकी स्तुति करेंगे Praise Him when the sun goes down. और शाम को जब सूरज अस्त होता है तब भी हम उसकी स्तुति करेंगे। After a month, you come and talk to me. और 1 महीने के बाद में आप आके मुझसे बात कीजिए। Father, we want to thank you for your presence. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। We thank you, Lord, for the truths of your word. धन्यवाद देते हैं जो आपके वचन की सच्चाई है उसके We लिए। thank you for reminding us about the power in praise. और धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आपने हमको बताया कि कितनी सामर्थ्य है आपकी स्तुति I आराधना pray में। that you would help each one of us to put this simple thing into practice. और आप हम सब की सहायता करें ताकि ये जो साधारण सा कार्य है वो हम लगातार कर पाए। And Lord, may our praise, Lord, make you come and inhabit in our lives, in our homes, everywhere we go. और हमारी जो स्तुति आराधना है वो आपको आकर्षित करे और आप हमारे घरों में, हमारे जीवनों में आके अपनी उपस्थिति को आप बनाए रखें। We commit this week into your hands. ये सप्ताह हम आपके हाथ में देते हैं Help us to see you fighting our battles. और हम आप देख सके कि आप हमारे हर लड़ाई को लड़ रहे हैं। No matter what circumstance that we might face, और चाहे कोई भी परिस्थिति है का सामना हम क्यों ना करें no matter what situation we face, और कोई भी परिस्थिति से हम क्यों ना गुजरे help us to keep praising you. और हर समय हम आपकी आराधना कर सके ऐसा आप होने Lord, we दीजिए। want to tell you, you're worthy. और हम प्रभु आपको कहना चाहते हैं कि आप योग्य है You're worthy of all our praise. और सारी स्तुति के आप योग्य है प्रभु। Fill our lives. और हमारे जीवनों को आप भर Fill our दीजिए, homes. हमारे घरों को आप भर दीजिए Lord, every moment be with us. और हर क्षण आप हमारे साथ में बने We रहिए। give you all the glory, honor, and praise. सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं In प्रभु। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।